Assalamu alaikum grade 5 students, it's your maths and today we are going to start its unit 4 decimals exercise number 16 which is on page number 61. Look here on page number 61. In this exercise questions are given as a word problem and we try to solve these word problem through mathematical operations. First part is Sadia poured 6.6 liter of orange juice equally into 8 bottles. How many liter of juice was there in each bottle? ओके सादिया ने क्या किया 6.6 लीटर ऑरेंज जूस जो था उसने 8 बोटल्स में डेला 8 बोटल्स में डाला। इट्स मीन उसने 8 बोटल्स में जूस को डिवाइड कर दिया। इन दिस क्वेश्चन वी डू द डिवीजन। लुक हियर द नोट्स। 6.6 divided by 8, 6.6 you write under the root divided by 8. Look here, outside 8 is one digit number and under the root when you check one digit number that is 6. 6 is less than 8, 8 से कम है and we need an other number but first look here, there is a point between these two number. First we write the point on the quotient, they write 0 point. Okay, then 8 8s are 64, remainder is 2, take a 0 because you already take a point. Point आपने लिया हुआ है, अब 0 आप ले सकते हो हर स्टेप में 1. Then 8 2s are 16 and 21 is 16 will be 4 answer. Take another 0. 8 5s are 40 and the complete division is 0.825 and the answer is 0.825 liter. Look here the next part. Next is part B. A rope of 3.6 meter was cut into 6 equal pieces. एक rope, एक रस्सी जो थी 3.6 मीटर जो है उसको 6 pieces में कट कर दिया गया. इट्स मीन रस्सी को भी डिवाइड कर दिया गया pieces में. What is the length of each piece? Look here, do the division. 3.6 right under the root divided by 6 and take a 0 point because one digit number is 3. 3 is less than 6. जब आप 2 digits check करोगे there is a point between these two numbers. Take a 0 point in the quotient and 6 6 are 26 and 0.6 is the answer. Now we focus exercise number 16 part C. Soha car shows that it has travelled 49.6 किलोमीटर. सोहा की जो कार है उसकी रीडिंग से शो हो रहा है कि 49.6 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है. हाउ मच फर्दर डज शी नीड टू ड्राइव टू रीच अ नेबरिंग सिटी दैट इज़ 87.8 किलोमीटर अवे फ्राम द वेयर शी स्टार्टेड. तो अब बताएं कि उसने अगर नेबरिंग सिटी जो कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ से लेकर नेबरिंग सिटी तक जितना एरिया है 87.8 किलोमीटर है. जो 87.8 किलोमीटर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे और कितना ट्रैवल करना पड़ेगा. और यहाँ पे जितना टोटल डिस्टेंस है वहाँ वो अपर साइड पे आप राइट करोगे. लोअर साइड पे जितना यहाँ पे उस कार ने कवर कर लिया वो राइट करोगे एंड डू द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस. आपने माइनस कर देना है. बट टेक केयर ऑफ कैरीज एंड आल्सो पॉइंट. ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए. नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स पार्ट डी and the part D is a jug can hold 250.55 milliliter of water. एक जग के अंदर इतना पानी आ सकता है. ओके, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास इज़ 2.5 मिलीलीटर. अगर एक ग्लास की कैपेसिटी है हाउ मैनी ग्लासेस विल बी फिल्ड आउट ऑफ द जग. तो जग में से कितने ग्लासेस फिल किए जा सकेंगे. दिस इज़ आल्सो डिवीजन क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे जितना वाटर है जग के अंदर उसको आपने ग्लासेस में कंप्लीट पोर करना है, डेलना है. इट्स मीन यहाँ पे आपने बताना है कि कितने ग्लासेस फिल हो सकेंगे. इन दीज टू values there is a point. First you finish the point, under the point you write the one, then all the other numbers after point you write the zero. जितने point के बाद digits होंगे इतने number होंगे आपने इतने ज़ीरो नीचे राइट कर देने हैं. एंड लुक एट द सेकेंड, यहाँ 2.5 था पॉइंट के नीचे आप 1 राइट करोगे. देन अंडर द 5 यू राइट द 0. 25/10. देन डू द रेसिप्रोकल प्रोसेस. आपने यहाँ पे इस चीज़ को रेसिप्रोकल कर देना है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेसेस चेंज कर देनी है एंड साइन विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन. Look here, 0 multiplied by 0 and 25,055 multiplied by 1 is upper side and lower side 10 multiplied 25
The answer will be 25,055 divided by 250. Do the division like this. 251s are 250 complete division and the remainder is 0. And the next step जब आप नीचे write करोगे 5 that is less than 250, we need another number. जब आप दूसरे number भी साथ write करोगे in the quotient you write the 0, okay. And these two numbers make 55. 55 is less than 250 and 250 zeros are 000, and the remainder will be 55, and take a point and take 0. Then 252s are 500, remainder is 50, and take another 0. 252s are 500, and the answer is 100.22. This is the answer. And look here, the next part E. And the part is, if 22.5 meter of cloth is required to stitch 10 pair of pants. पैंट के 10 पेयर्स अगर बनाने हैं तो हमें कितना कपड़ा चाहिए. 22.5 मीटर क्लॉथ चाहिए. हाउ मच क्लॉथ इज़ नीडेड टू स्टिच 2 पेयर ऑफ पैंट. तो अगर 2 पेयर ऑफ पैंट बनाने हैं तो हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा. लुक हियर, फर्स्ट वी फाइंड द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 पेयर ऑफ पैंट. क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 पेयर ऑफ पैंट, यू डू द डिवीजन. तो 1 का आपका फाइंड आउट होगा 22.5 डिवाइडेड बाई 10. एनी नंबर डिविजिबल बाई 10, जो आप 10 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 10, एंड पॉइंट विल बी शिफ्ट 1 स्टेप टू द लेफ्ट. लुक है, यहाँ पे पॉइंट है तो ये 1 स्टेप पीछे चला जाएगा. 2.25 मीटर इज़ द आंसर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 पेयर ऑफ पैंट. एक पेयर बनाने के लिए हमें 2.25 मीटर क्लॉथ चाहिए. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 2 पेयर ऑफ पैंट्स. जब आपको 1 का फाइंड आउट हो जाए, किसी भी एक चीज़ की वैल्यू पता हो, ज़्यादा की फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करोगे. 2.25 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2, and 2 5s are 10, 1 will be carried, 2 to the 4 plus 1 5 point, 2 to the 4 4.5 meter is the answer. Now look here, the next part. The first day Anam walked 7.17 meter in a park. पार्क में इतने मीटर उसने वॉक की. The second day she walks 6.2 meter. How much does she walk in 2 days? 2 days में उसने कितना वॉक किया. 1 डे का और सेकेंड डे का आप ऐड कर दोगे. Okay, do the addition. And the next part is 14.8 kg of sugar is used by a family in a month. In a month, look here, focus this point. In a month, एक मंथ में 14.8 kg शुगर यूज़ हो रही है एक फैमिली में. how much sugar will be used by them in 1 year? तो 1 ईयर में कितना kg वो शुगर यूज़ करेंगे. look here, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं. 12. हमें 1 मंथ का पता है. ज़्यादा का 12 का फाइंड आउट करने के लिए वो डू द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस. एंड 177.6 kg ओवरऑल पूरे 1 ईयर में यूज़ होगी शुगर. एंड द पार्ट एफ वाज एडिशन क्वेश्चन. इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपने एडिशन करना है लाइक दिस. होप सो यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल पार्ट्स.